Sorry, there is no electricity. You people can see. Hmm? Can you tell me the dissimilarities and similarities between the two? The penguin and the spoon. Yes, think about it and let me know one by one. What are the differences? It's just a game. Don't be so tense about it that I'm asking such a silly question or something like that. But just whatever you are thinking, just let me know. Miss, can I? Yes. Miss, I think the one difference can be like the spoon is an object and penguin is a picture. It's Uh, not an object. okay. ठीक है. Yes. Next. Also, Miss, the spoon is made up of steel, and the penguin's photo is made of plastic. Okay. Yes. What else? Rather than Anas, anybody else? Miss, living thing, non-living thing. Living thing, non-living thing. Good. Rida, Dua, do you want to say anything? Rida, Dua, would you like to participate? Would you like to add up something in the discussion? Miss, spoon is steel. Spoon is made up of steel. Hassan, please, Dua, please, on your video. Hassan Abbas, I want to see your face, beta. Yes. Yes, Rida, anything? No, miss. Okay, Hassan, we are discussing two things over here. I have shown them an object, spoon, and a picture of penguin, and asked about the similarities and the dissimilarities between these two. Would you like to say something? And what is the difference between a spoon and a penguin? एक पेंगुइन और एक स्पून के दरमियान क्या डिफरेंस है और क्या उसके अंदर मतलब सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को बताना है. सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को हम कहते हैं डिफरेंसेस. Okay. Would you like to Penguin is living thing and spoon is non-living thing. please repeat? Penguin is living thing and spoon is non-living thing. Okay. Sarib also thought the same, that a spoon is a non-living thing and a penguin is a living thing. Okay, if how do you know that? Can you want to add up in it? क्या आपको कैसे अंदाजा हुआ कि ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है? कहने को तो मैं भी कोई चीज को बोल सकती हूँ, आप कोई भी किसी चीज को बोल सकते हैं, लेकिन किस तरह से पहचानते हैं आप कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है? What is your Miss idea of Penguin. differentiation? Miss Penguin can breathe and react, but spoon cannot breathe or react. Okay, you can see that a penguin can breathe, but a spoon cannot breathe. ठीक है. और क्या लगता है, और आप लोगों को क्या लगता है? And penguin cannot move. Penguin cannot move. Penguin can move. Penguin can move and spoon cannot move. Yes, penguin can move and the spoon cannot move. Let me share the whiteboard. Okay.
Yes. Penguin. Okay, penguin as living thing. Spoon as non-living. Okay, so he said can breathe, move, और what else? क्या कर सकता है penguin? Eat. एक मिनट, ये इसकी spelling. Can breathe, can React. move, can... Yes. Miss, react. React. ये आप सारे, आपकी क्यों बेटा वीडियो ऑफ हो गई? आप लोग वीडियो ऑन करके नहीं आ रहे हैं. हमें सख्ती से कहा गया है कि आप लोग वीडियो ऑन करके रखें unless there is some problem. और जो बच्चा हर वक्त अपनी क्लास में उसकी वीडियो ऑन रहती है, कभी अगर उसके साथ प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसे कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर किसी का रोज यही मामला हो तो अब नहीं होगा. अब ये फॉल टर्म है, अब प्लीज all of you be serious, or this is not a responsible behavior that this is the second class of the fall term and the first class was missed because of the rain and electricity failure, even though the students are not attending the class now. I don't know why. Okay, can breathe, can move, and what else? Yes, other student, you can also add into it. It's nothing like something that you don't know. आप लोगों को बड़े आराम से पता है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क होता है. हम तो सिर्फ अपनी पुरानी मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं. ये मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, कि हम लोग अपनी मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें मालूम है कि एक लिविंग थिंग कैसा होता है और एक नॉन लिविंग थिंग कैसा होता है. यस, कैन ब्रीथ, कैन मूव, और एक स्पून अपने जैसा स्पून पैदा कर सकता है? No. तो No. और आप लोगों ने जो अपना 7th क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो किस बारे में था? Miss, जी बेटा. living things can eat, they can grow. They can eat, they can grow. अच्छा, मैं जो पूछी थी क्लास 7 में आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर कौन सा था जो आप लोगों ने पढ़ा था फॉल टर्म में? कुछ याद है? कौन बताएगा? रिप्रोडक्शन था, अगर याद नहीं था तो. रिप्रोड्यूस. आप लोगों का क्लास 7 में हमने जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था फॉल टर्म में वो था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अगर याद आया, इन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो Yes, miss. एक जो स्पून है, क्या वो अपने जैसा स्पून बना सकता है? No. No, miss. बिल्कुल नहीं बना सकता. अनस, उमर, आर यू देयर? यू पीपल आर नॉट सेइंग Yes, एनीथिंग. miss. अनस, आपका जो बैकग्राउंड है ना वो आपके साथ ऐसा निकल रहा है जैसे आपकी आंखों से लहरें निकल रही हैं. मुझे ऐसा दिख रहा है. Why don't you remove the background? अच्छा खैर चलें. रिप्रोड्यूस हम बात कर रहे थे कि a spoon cannot produce a same spoon but a penguin can reproduce a same
लिविंग ऑर्गेनिज्म पेंगुइन लाइक इटसेल्फ, अपने ही जैसा वो एक और कॉपी बना सकता है, किस प्रोसेस के थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू। और कुछ बोलना है आप लोगों ने, कुछ और ऐड करना है? कैन ब्रीथ, कैन मूव, कैन ग्रो, कैन ईट, कैन रिप्रोड्यूस, और कुछ ऐड अप करना है? Miss, spoon have no senses and penguin have. जीत हुआ प्लीज, pardon me, Miss, penguin have senses. yes, penguin have senses, sensation, irritability, sensibility, have senses, we can say that sensitive, और स्पून के कोई सेंसेस नहीं है। अगर हम स्पून को टच करें, इसे गर्म करें, कुछ भी करें, तो स्पून को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसे पता चलता है कि बेचारे के साथ क्या हो रहा है। ऐसा ही है? Yes. ठीक है। तो और अब हम इसी के, अब जो जो चीजें हमने लिविंग थिंग के लिए कही कि लिविंग थिंग कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग कैन मूव, लिविंग थिंग कैन ग्रो, लिविंग थिंग कैन ईट, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग हैव सेंसेस, दे आर सेंसिटिव। और एक और चीज है, whatever the thing penguin has eaten, it is removed from the body by a special process known as excretion. Excretion. Digestion is the process in which the food is converted from the complex form to simple form. ठीक है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आ गया। लेकिन एक्सक्रीशन क्या है? उसी अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, Okay. अच्छा अब जरा ये जो हमने जितनी बातें डिस्कस की हैं, कैन ब्रीथ, मूव, ग्रो, ईट वगैरह, इन सब के हम ये देखते जाते हैं कि इनको बाय प्रोसेस कहते क्या है? कैन ब्रीथ, व्हाट इज दिस? Cannot breathe. What is this process called? Huh? What do we call this process? The process of breathing. क्या कहलाता है बेटा ये प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। क्या हो गया? कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा? ओके, respiration, the process of breathing is respiration. अच्छा, ये respiration की पूरी complete definition नहीं कहलाती है the process of breathing ही, क्योंकि respiration के 2 steps होते हैं। One is the breathing and the other is the cellular respiration, जिसमें हर सेल के अंदर जो है वो जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फूड होता है, फूड पार्टिकल, उसके अंदर जो है ऑक्सीजन उसके साथ जो है जमा होकर उसके साथ क्या कहना चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, इन विच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड टू ब्रोकन अप द फूड पार्टिकल विच इज इन द सेल। ठीक है, सो दैट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल। जो भी एनर्जी मौजूद है उस सेल के अंदर वो फिर उस वक्त यूटिलाइज करता है सेल बाय सेलुलर रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन के ये अभी मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ, अभी हम रिस्पायरेशन के टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम सिर्फ कहें कि ब्रीदिंग यानी कि इन एंड आउट ऑफ द गैसेस फ्रॉम द बॉडी विच इज नोन एज ब्रीदिंग, तो ये ब्रीदिंग आप लोग मुझे कुछ नोट करते हुए सिवाय रिदा के और कोई नहीं दिख रहा। मुझे रिदा दिख रहा है कि रिदा आप पॉइंट्स नोट कर रही हो ना बेटा? खैर,
लेकिन आप लोग पॉइंट्स नोट करेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा, क्योंकि अगर आप लोग के पास कॉपीज होती तो मैं आप लोगों को अगला ही ये काम देती कि आप लोग सबसे पहले आप लोग के जैसे ही जर्नल्स आ जाएंगे आप लोग अपना नाम लिखेंगे. यू हैव टू राइट योर नेम फर्स्ट ऑन द फर्स्ट पेज एज वी डिड बिफोर. Secondly, you have to make the index. You have to leave 3 to 4 pages depending upon your writing size. Leave 3 to 4 pages for index. ठीक है. फिर उसके बाद आपका चैप्टर 1 आ जाएगा, व्हाट इज बायोलॉजी. और इसके बाद आपका चैप्टर 2 है, वो है आपके सिलेबस के अंदर. ठीक है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मैं आप लोग को लिख के ही भेज दूँ. ठीक है, मैं आप लोगों को लिख के ही ग्रुप में शेयर कर दूंगी, क्योंकि आज सिर्फ 4 और 5 स्टूडेंट ने क्लास ली है, जबकि आज सबको होना चाहिए था, क्योंकि आज सेकंड क्लास है. दिस इज नॉट द फर्स्ट क्लास. Okay, after making the index, you have to make the title page for the chapter. Chapter 1, what is biology? And your first question will be write the difference between living thing and non-living thing. 7 to 8 पॉइंट्स के अंदर आप लोग इसे खुद लिखोगे. ठीक है, और बहुत अच्छा सा लिखोगे. आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और आपने इसको लिखना होगा. अच्छा, ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? Yes, miss. ओके, गुड. फिर हमने बात की कि रेस्पिरेशन के बाद हमने बात की थी, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, लिविंग थिंग. लिविंग थिंग कैन मूव. तो ये जो मूव होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कुछ आइडिया है आप लोगों को? एनी आइडिया? हसन, वेयर आर यू? हसन, आर यू I'm देयर? here. Yes, I'm here. हसन, आपने अभी तक अपनी वीडियो ऑन नहीं की है. उमर, आपने भी वीडियो ऑन नहीं की है. वीडियो ऑन कीजिए आप लोग. गुड. उमर, मिस मेरे यहाँ लाइट गई हुई है. आपकी लाइट गई हुई है? लाइट तो बेटा मेरे भी गई हुई है. मैंने इसलिए अपनी वीडियो को ऑफ करा हुआ है कि चले खैर. ओके, ठीक है. हम बात कर रहे थे कि मूव को क्या कहते हैं? एनी आइडिया? इसका प्रोसेस को क्या कहते हैं, मूवमेंट को? चले, मूवमेंट सिंपली से कह सकते हैं, वरना इसको एक और वर्ड कहते हैं, लोकोमोशन. द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इज नोन एज लोकोमोशन. अच्छा, ग्रो, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. डेवलपमेंट. ठीक है. अब ग्रो में सब चीजें आ जाती हैं. ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो ग्रोथ की मुराद इंक्रीज इन साइज एंड लेंथ भी होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है, और मेच्योरिटी ऑफ दैट ऑर्गन भी होता है. अगर हमने बात की कि कोई भी ऑर्गन अगर बॉडी में डेवलप हुआ है, तो पहले उसकी एक प्राइमरी स्टेज होती है डेवलपमेंट की, और फिर उसकी एक सेकेंडरी स्टेज होती है डेवलपमेंट की. ठीक है. तो प्राइमरी डेवलपमेंट के अंदर जो होता है, साइज इंक्रीज होता है, डेवलपमेंट होती है, सेलुलर डेवलपमेंट हो रही होती है, सेल का डिवीजन हो के जो है पूरा एक ऑर्गन फॉर्म हो रहा है या एक पूरा बॉडी पार्ट फॉर्म हो रहा है. लेकिन क्या होता है, और जो सेकेंडरी डेवलपमेंट होती है वो मैच्योरिटी होती है. ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है कि एक ऑर्गन मौजूद है,
वो प्राइमरी उसमें जो है प्राइमरी डेवलपमेंट हुई हुई होती है, लेकिन एज अ टाइम पासेस दैट ऑर्गन मैच्योर्स, इसे कहते हैं सेकेंडरी डेवलपमेंट. जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल इन द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेकेंडरी डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. ठीक है. एंड इवन अच्छा, अब ये सेकेंडरी डेवलपमेंट ही होती है इंसानों के अंदर, कि आपने देखा है कि पहले जब बॉय होता है तो बॉय की आवाज जो होती है वो थोड़ी सी वो होती है, सॉफ्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 12, 13, 14, तो क्या होता है, पिच हाई हो जाती है और आवाज भारी हो जाती है. देखा ना कैसे भी कहते हैं लो इनकी तो मर्दों वाली आवाज हो गई, ऐसे मजाक में कहते हैं ना. बहुत से लड़कों की आवाज चेंज नहीं होती. तो ये भी किस में आता है, सेकेंडरी कैरेक्टर में आता है, कि पहले से ही वॉइस बॉक्स तो मौजूद था, आवाज मौजूद थी, लेकिन जब डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद आवाज की पिच जो है वो चेंज हो गई, हाई हो गई, तो क्या हुआ, फिर आवाज भारी हो गई. तो ये सेकेंडरी डेवलपमेंट के अंदर आता है. बात समझ आ गई? इज दैट क्लियर? Yes, miss. Yes, miss. ओके, अब हम ईट की बात कर रहे हैं. ईट किस प्रोसेस के अंदर आ जाएगा? ईट किस प्रोसेस के अंदर आ जाएगा बच्चों? Miss, digestion. डाइजेशन में आएगा या न्यूट्रिशन में आएगा? डाइजेशन का तो मैंने आपको बताया ना कि डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच complex molecule of food is converted into simple form. जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वो जो सिंपल फॉर्म में नहीं होते हैं, बल्कि उसके अंदर 2, 3, 4 किस्म के मॉलिक्यूल्स मिलके जो है वो उस खाने को बना रहे होते हैं. ठीक है. और फिर जब हम लेकिन जब हम उसे हजम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो उसे क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, और वो जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी उसको बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर. और फिर वो खून के जरिए, ब्लड के जरिए क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सही है. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का पार्ट है डाइजेशन, कि एक जानदार जो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो कैसे न्यूट्रिशन हासिल करता है, बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ठीक है. अब इस डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होती है, तो जाके ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है. समझ आ गई बात? Who is there? Yes, Iqra- teacher. Iqran Badr. ओके. फिर रिप्रोडक्शन. रिप्रोड्यूस था, रिप्रोडक्शन हो गया. ये हम बात कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग. रिप्रोडक्शन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक. Reproduction is a process by which an organism is capable of producing exact copy of itself. Reproduction एक ऐसा process है जिसके जरिए कोई भी जानदार अपनी ही जैसी exact copy बना लेता है. ठीक है. फिर इसके बाद हमने देखा have senses, sensitivities. इसको भी सेंसिटिविटी कहते हैं, इरिटेबिलिटी कहते हैं, कि जो इर्द गिर्द जो भी चीज़ हो रही होती है उसको जानदार जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उसको महसूस कर सकता है, पहचान सकता है, और उसके मुताबिक कोई एक्शन ले सकता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर उसे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, वो उसके मुताबिक कोई भी रिएक्शन उसकी बॉडी शो करती है. ठीक है. तो ये सब किस में आ गया, सेंसिटिविटी एंड इरिटेबिलिटी में. फिर आ गया एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. तो आज हम लोगों ने हमने क्या क्या बात की, रिस्पायर करता है, लोकोमोशन होती है लिविंग थिंग में, न्यूट्रिशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, सेंसिटिविटी इरिटेबिलिटी होती है, एक्सक्रीशन होती है. ठीक है. और जबकि एक नॉन लिविंग थिंग है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता.
सब में डू नॉट करके आ जाएगा, डू नॉट एस्पायर, ठीक है। फिर एग्जाम्पल क्या है लिविंग थिंग की, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे ही पेंगुइन दिखा दी, और नॉन लिविंग में मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे ही एक स्पून बता दिया। अच्छा, अब जो हमारा ये चैप्टर है व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Living organism. अच्छा, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? Humans, और animals, plants. Plants. अच्छा, क्या क्या कहा आपने? ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये जो ह्यूमन Yes. है ये कोई अलग कैटेगरी है? No. Human itself is a himself is a animal. एनिमल की कैटेगरी में रखा जाता है साइंस में, बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन को जो है वो एनिमल्स के अंदर रखा जाता है, Okay. ठीक है। और फिर इसके अलावा कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? कोई और चीज जो इर्द गिर्द मौजूद हो, जरूरी नहीं है कि आपको दिखती हो। बड़ा हमने जीरो टर्म में उसके बारे में पढ़ा है। Microorganisms. यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Microorganisms are also living beings, except the virus. वायरस को जो है वो लिविंग बीइंग्स में नहीं काउंट करते। उसकी वजह ये है कि जब तक वायरस जो है आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, if it is present outside the living body, it does not reproduce, it does not show any sign of living organism. जब वो जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है तो वो सारे लिविंग बीइंग के जो है करेक्टर्स वो शो करता है, नॉट ऑल बट सम ऑफ देम उन्हें शो करता है। लेकिन जब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होता है तब तक वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर शो नहीं करता। इसलिए वायरस को लिविंग की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। इसलिए कहते हैं कि वायरस हैज बोथ करेक्टर्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग, बोथ, ठीक है। तो फिर जो एनिमल की क्लासिफिकेशन की गई है, एनिमल एंड प्लांट्स की, तो उसमें वायरस को उन सब से बाहर निकाल दिया गया। फिर जब क्लासिफिकेशन करते हैं हम जितने भी जानदार जमीन पे मौजूद हैं, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स। इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं। चले मैं बताती ही जाती हूँ, लेकिन हम इसको पूरी क्लासिफिकेशन को एक दफ़ा ज़रूर देखेंगे क्योंकि आपके चैप्टर 1 में जो है पूरी क्लासिफिकेशन दी हुई है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आ गए तो वायरस। वायरस आर प्लेस्ड बिटवीन outside the living organism, ठीक है। फिर आ जाते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो के हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। व्हाट आर प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। फिर इसके बाद ही फंजाई, एल्गी वगैरह आते हैं। फिर इसके बाद प्लांट्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरी क्लासिफिकेशन की जाती है।
तो हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में. द स्टडी ऑफ प्लांट, the branch of biology that deals with the study of plant is known as botany. The study of the branch of biology that deals with the study of animal is known as zoology. ठीक है. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाएगी? क्या हो गया? खामोश क्यों है सब? मजा नहीं आ रहा पढ़ने में? What miss can you repeat? Miss आपकी आवाज बहुत low है. मेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है. अच्छा.